गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रमेश शर्मा। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 7.6 and the question is integrate sine inverse x dx. Second question is integrate cos inverse x. Third question is integrate tan inverse x. So साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनटू 1. So we will take by using ID tool. This is first, this is second. So we will write here by using integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? सबसे पहले लेट आई बोलना ही है हमें हर क्वेश्चन में। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, करली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। कोई बड़ा काम नहीं करा है हमने, सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। नाउ I as it is sin inverse x and the integration of 1 is x and the differentiation of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square and the integration of 1 is x dx. Is that clear? Now we have not studied division rule. डिवीजन रूल हमने नहीं पढ़ा है, so we will integrate this function by using integration by substitution. So put 1 minus x square is equal to t. Now we will differentiate and differentiation of 1 is 0 and the differentiation of x square is 2x, that means minus 2x dx is equal to dt. So we can write x dx is equal to minus dt by 2. So in place of x dx we will write dt by 2. So I is equal to sin inverse x into x minus, in place of x dx we will write dt by 2 with minus sign, and 1 upon, in place of 1 minus x square we will write t. Is that clear? So I is equal to x sin inverse x plus 1 by 2 integrate, we will write 1 upon root t as t की power minus 1 by 2 dt. Okay? So I is equal to x sin inverse x and the integration of t की power minus 1 by 2 by using the formula of x की power n, x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Now 1 by 2 cancel out, so I is equal to x sin inverse x plus, by putting the value of t, 1 minus x square की power 1 by 2 plus c is the answer. मेरे हिसाब से बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ यहाँ पर साइन का चेंज होगा। नाउ वी विल इंटीग्रेट tan इनवर्स x dx. tan inverse x into 1
By using Euler rule, tan inverse is first function and 1 is second function. So by using integration by parts, first function ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, करली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी हैं। सो I is equal to tan inverse x and the integration of 1 is x, and we know very well the differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x dx। तो फर्स्ट पार्ट से तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए we will substitute 1 plus x square is equal to t, and the differentiation of 1 is 0, x square is 2x, dx is equal to dt. So by transposing, x dx is equal to dt by 2. So in place of x dx, we will write dt by 2, 1, and in place of 1 plus x square we will write t. So I is equal to x tan inverse x minus 1 by 2 log t plus c. Now we will substitute the value of t here. We get I is equal to x tan inverse x minus 1 by 2 log 1 plus x square plus c is the okay। ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन होगा इंटीग्रेट tan इनवर्स x, और 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये रहेगा। ओके, आई थिंक देयर इज नो डाउट। लुक दिस, now the next question number 7 is integrate x sin inverse x dx. This question is very important. So by using Euler rule, this is first, this is second, because x is algebraic function and this is inverse function, और आइलेट में सबसे पहले a आता है या I आता है। देखो a बाद में आ रहा है और I क्या आ रहा है पहले। तो साइन इनवर्स x को हम क्या मानेंगे फर्स्ट, और x को क्या मानेंगे सेकंड। सो अगेन वी विल राइट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी गेट I is equal to फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, करली ब्रैकेट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और पूरे का इंटीग्रेशन। कोई बड़ा काम नहीं किया है। I is equal to sin inverse x and the integration of x is x square by 2, and the differentiation of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा x square by 2 dx। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था x, और अंडर रूट क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानने पर ऊपर वाला पार्ट गायब हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गायब नहीं हो रहा। तो हमें ऊपर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने के लिए देखो एक्स स्क्वायर कैसा है माइनस, तो यहाँ पर क्या है माइनस, इसे तो मैं कर देता हूँ प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही आएगा। अब पास में क्या है 1, तो मैंने अपनी मर्जी से 1 को ऐड करा और 1 को सबट्रैक्ट कर दिया। अब इसे एक टर्म माना, तो देखो I is equal to
एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2, सेपरेट करते हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इज दैट क्लियर? अब इस पार्ट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम अलग अलग कर देते हैं इसे। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज रहेगा, लास्ट वाले का हमें फॉर्मूला पता ही है साइन इनवर्स एक्स। अब जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पर देखो 450 लगेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये 1 बाई 2 पहले से चल ही रहा है, एरो लगा देता हूँ, मतलब 450 का फॉर्मूला 1 बाई 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लिया, माइनस 1 बाई 2 और इसका क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नाउ विल सिंप्लीफाई, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस मल्टीप्लाई करा एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस। तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस सी। तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर 4 एलसीएम 1 माइनस 2, देखो ये आएगा क्या, ये आएगा। तो क्या हो जाएगा ये आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 तो माइनस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इज द आंसर। ओके, लुक दिस, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्वेश्चन को। एक्स साइन इनवर्स एक्स था, आइलेट के हिसाब से साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट पाना, एक्स को हमने सेकंड पाना। पहले स्टेप में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई किया है। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कहाँ से आया था, एक्स का इंटीग्रेशन और साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, ये मिटाकर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो ये स्टेप अपने पास में आई थी। अब यहाँ पर नीचे वाली को टी मानने पर ऊपर वाला पार्ट तो गायब नहीं हो रहा है, तो टर्म्स बढ़ाने के लिए ये बाहर क्या था माइनस, तो ये माइनस तो मैंने किया अंदर और इसे मैंने क्या कर दिया प्लस, ठीक है। अब पास में क्या है यहाँ पर 1, तो अपनी मर्जी से 1 को ऐड कर दिया और 1 को सबट्रैक्ट, और उसके बाद इसे मैंने क्या मान लिया एक टर्म। नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई 2, फिर इस वाले पार्ट में पर इसके अपॉन में ले गए और इसको 1 के अपॉन, ये स्टेप आ गया।
इन दोनों को सिंप्लीफाई करा तो क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये ऐसा। फिर हमने इंटीग्रेशन जो है अलग अलग कर दिया, तो हमारे पास 3 पार्ट आ गए। पहला पार्ट तो ऐसे चलता जाएगा और लास्ट वाले पार्ट का हमें फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स एक्स। और जो सेकंड वाला पार्ट है यहाँ पर हमें 450 का फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हम 450 में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करा और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इंटीग्रेट x tan इनवर्स x। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेट x sin इनवर्स x, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है इंटीग्रेट x cos इनवर्स x। वो सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा होगा। फर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स स्क्वायर को माइनस बनाया था, बाहर वाला माइनस अंदर ले जाकर, कॉस वाले में डायरेक्ट रूट पहले से ही माइनस बना हुआ आ जाएगा। तो वो आप ट्राई करेंगे, नहीं तो वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्स tan इनवर्स एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i इज इक्वल टू, देन ये हर स्टेप में हम लिखने की आदत डालेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वी गेट i is equal to, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड। एग्जाम में ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। तो tan इनवर्स x फर्स्ट ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट में, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? सो i is equal to tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर एंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 dx। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया, नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला गायब नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर कैसा है प्लस का, ऊपर भी प्लस का है, पास पे क्या है 1। यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे 1 ऐड करा 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप में हमने क्या करा है सेपरेट करा है। नाउ दिस इज कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग टर्म्स एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब सेपरेट कर लेते हैं 1 dx माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो बड़ा आसान सा ही है। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस 1/2 यहाँ पर भी आएगा 1/2 एंड द 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स x प्लस c इज द आंसर। साइन कॉस वाले से ज्यादा आसान कौन सा है tan वाला। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लिया उसने, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया। अब ऐसे ही वो साइन में भी पूछ सकता है और कॉस में भी पूछ सकता है। तो देखो
दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। I is equal to tan inverse x and the integration of x square is x cube by 3। अब tan inverse x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 dx। अब देखो ये फ्रैक्शन कैसा आ गया, इम्प्रॉपर आ गया है। तो एक तरीका है या तो आप डिवाइड कर लो, और अगर डिवाइड नहीं करना चाह रहे हैं आप तो आप इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लो। एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3, एक्स क्यूब को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे इसलिए ब्रेक करा है क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब मैं टी लूंगा, देखते जाओ आप, तो 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। तो देखो ये वाला पार्ट तो गायब हो गया गायब। तो इसकी जगह तो हमने क्या लिखा, 1/3 तो है dt बाय 2, ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया t। अब बच क्या गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से t माइनस 1। ओके, क्या हो गया ये I इज इक्वल टू, एक बार फिर से लिख लो, एक्स क्यूब था, ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स क्यूब को ब्रेक करा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये साइन वाले में, साइन इनवर्स एक्स वाले में और कॉस इनवर्स एक्स वाले में भी यही तरीका है। तो फर्क क्या होगा, वहां पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया तो क्या आ गया, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई 2। तो एक्स डी एक्स लेंगे तो क्या लिख दिया dt बाई 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t। अब बच क्या गया, ये एक्स स्क्वायर बच गया और वेरिएबल क्या है अपना t, एक्स नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू निकाली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर t माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/6, सेपरेट करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन टी dt, ठीक है। लुक दिस, यहां पर I इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/6 इंटीग्रेट 1 dt और प्लस 1/6 1/t dt। तो क्या हो जाएगा ये, I इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/6 इंटू टी प्लस 1/6 इंटू लॉग टी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, टी की वैल्यू पुट करके प्लस क्या लगा देंगे, सी लगा, सी पहले लगा दिए, टी की वैल्यू पुट करके आंसर लगा दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इसे यहाँ पर दूसरा फंक्शन नहीं तो हमने क्या लिखा 1। आइलैंड के हिसाब से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और पूरे का इंटीग्रेशन। तो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर,
चेन रूल से इससे हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर होश पे आने पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। ओके, ये जो पार्ट है ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जितना मैंने डॉट लगा रखा है ना, दिस इज एग्जाम्पल, और एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है कॉस इनवर्स एक्स, सॉल्व करने का तरीका सेम है। देखो, वी हैव नॉट स्टडीड डिवीजन रूल, सो विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जब भी इनवर्स का फंक्शन आता है तो हम इनवर्स वाले को ही क्या लेते हैं, यहाँ पर t लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना t, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा पार्ट तो चला गया। देखो क्या है, i इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, इसकी जगह हमने क्या लिखा dt, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से साइन t, और साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं t। तो देखो अब यहाँ पर फिर से क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर शायद हमने 1 ही किया था, x साइन एक्स, ठीक है, सेम उसी तरीके से करेंगे हम। तो i इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, करली ब्रैकेट में डी बाय, यहाँ पर बच्चे से गलती होती है डी टी लिखना, बिकॉज मेन वेरिएबल इज टी, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो i इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 t, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इज cos t with minus sign, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t is 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin t is cos t with minus sign dt, okay। तो i is equal to x sin inverse x का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट माइनस t cos t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t is sin t प्लस c। तो i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 2t cos t माइनस 2 sin t प्लस c, ओके। अब मैं इसे आंसर के लिए बोल सकता हूँ t की वजह से। तो देखो अब इसे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2t, इस cos t को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिख सकता हूँ माइनस 2 साइन t प्लस c। इज दैट क्लियर? सो i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2, t की जगह क्या वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स x, √1 माइनस साइन t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c इज द लुक दिस। Now the next question is question number 11. Integrate x cos inverse x upon √1 minus x square. In last question, in place of cos inverse x, there is sin inverse x.
तो सेम प्रोसेस है, पुट cos inverse x is equal to t and the differentiation of cos inverse x is minus 1 upon under root 1 minus x square dx is equal to dt. So 1 upon 1 minus x square dx is equal to minus dt. So in place of this we will write dt with minus sign, ठीक है. In place of x we will write cos t and in place of cos inverse x we will write t. देखो आ गया. अब कौन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो i इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है. तो i इज इक्वल टू माइनस t, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t माइनस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 cos t का sin t dt. ओके, i इज इक्वल टू माइनस t sin t और sin t का क्या होगा, cos t विथ माइनस साइन प्लस c. अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये वैसे माइनस मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा. अब देखो माइनस t साइन t को इफ यू डोंट माइंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर t लिख सकता हूँ प्लस कॉस t प्लस c, क्योंकि मैं इसे आंसर क्यों नहीं बोल सकता, t की वजह से. तो i इज इक्वल टू माइनस t की जगह क्या पुट करें यहाँ पर, कॉस इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर t की जगह x स्क्वायर प्लस x प्लस c. आंसर आसान था क्वेश्चन, ठीक है. फिर पहले cos इनवर्स x को t माना, डिफरेंशिएट करा, फिर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स में क्या लिख दिया माइनस डी टी. तो ये मैंने गोला बना दिया, क्या लिख दिया डी टी और माइनस का साइन बाहर, x की जगह cos t, cos इनवर्स x की जगह t. उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेट x sec स्क्वायर x dx. ये फर्स्ट, ये सेकंड. सो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, करली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन. तो क्या हो जाएगा ये, i इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इज tan x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 sec स्क्वायर x का tan x dx. तो i इज इक्वल टू x tan x एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x. बताओ क्या होगा tan x का इंटीग्रेशन, मन में सोचो. यस, log sec x प्लस c. आंसर, ठीक है. ये फॉर्मूले जो है ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूले आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, नहीं. इन्हें आप रेगुलर चाहे 5 मिनट आप देखें लेकिन आपको नज़र ज़रूर मारनी है. ओके, आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है. लुक दिस, now the next question is question number 15.
integrate x square plus 1 log x dx. By using Eilert rule, we will take first log x and this is second. So by using integration by parts we get. आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ये नहीं कि हम रफ कॉपी में कर रहे हैं तो स्टेप गाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। So I is equal to log x, integration of x square is x cube by 3, 1 का x माइनस log x का 1 अपॉन x और यहाँ पर x क्यूब अपॉन 3 प्लस x dx। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, log x क्यूब बाई 3 प्लस x माइनस मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर बाई 3 प्लस 1। देख लो इसका इंटरवल इसमें करा तो एक तो चला गया x, तो x स्क्वायर बचा और इस वाले से मल्टीप्लाई करा था x तो क्या हो जाएगा ये log x क्यूब बाई 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और एक 3 पहले से ही है और 1 का x प्लस 3, थोड़ा और मल्टीप्लाई कर लो इसे तो क्या हो जाएगा ये log x क्यूब बाई 3 प्लस x माइनस x क्यूब बाई 9 माइनस x प्लस 3, ठीक है। लुक दिस, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। तो जो आज हमने एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस किए हैं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन जो छोड़े थे cos इनवर्स x cos इनवर्स x स्क्वायर साइन इनवर्स x और x स्क्वायर cos इनवर्स x dx, ये 4 क्वेश्चन जो है आप ट्राई करें। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।